فاصلے کو ہوئی ہے مجلس کو آواز بلند کچھ لوگ یہ امام زمانہ بآواز بلند صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للکافرین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا مقتدانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى اليمين الأطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل صلوات محمد اللهم صل على محمد ایک اور بلند صلوات پڑھیں اللهم صل على تمام تعریفیں تمام مدحت و مرتبت وقت ہے اس خالق کائنات کے لیے جس کے قبضے میں تمام کائنات ہے بے شک وہ جس کو چاہے جس انداز میں بخش دے وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور اس کی نوازشوں کا اس کی رحمتوں کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا سبحان اللہ اس کے عطا کرنے کا در کبھی بند نہیں ہوتا صلوات پڑھے گا جزاک اللہ تو جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل پروردگار آیت کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن مجید جسے ہم کائنات کی سب سے سچی کتاب جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے بے شک اس کے ذریعے ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کا وزن اتنا ہے کہ اگر وہ پہاڑوں پر نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے میں نے عرض کیا تھا پچھلی 2 تقریروں میں ایک کتاب کی شکل میں ہے دوسرا بولتے ہوئے 14 قرآن اس نے ہمارے درمیان میں اب میں گزارش کروں گی آنے والے آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں اس نے تمام انتظامات کیے کہ جب قرآن سمجھ میں نہیں آئے تو وارث موجود ہے استاد موجود ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب تک پڑھانے والا نہیں ہو کتاب سمجھ میں نہیں آتی تو یہ تو کتاب کی شکل میں بولنا نہیں جانتا قرآن صرف اشارے کر رہی ہے کتاب تو جب تک ہمیں استاد سمجھ آنے والا نہیں ہوگا قرآن مجید ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پتہ چلا کہ یہ کام کتاب کا ہے اشارے کرنا اور اشاروں کو سمجھانا ہے وارث قرآن کا نام اور وارث قرآن صرف ایک نہیں ہے کہیں محمد ہے کہیں علی ہے کہیں فاطمہ ہے کہیں حسن ہے پھر کہیں حسین ہے اور زیادہ مجھے وقت نہیں لینا موسم بھی بہت زیادہ خراب ہے لیکن کہیں ہوئی بات میں پھر دوہرا دیتی ہوں جہاں حسینیت ہو وہاں موسم کچھ نہیں کر سکتا حسینیت کو موسم کو ہرانے والا ایک ہی نام ہے جسے ہم شاہ کربلا کہتے ہیں اب میں نے ایک بات کی ہے کہ ایک ہی قرآن نہیں اس نے 14 قرآن اس گھرانے کو عطا کیے
जब जब जमाने को जरूरत पड़ी, अब मैं देखूंगी थोड़ा सा चेहरों की तरफ, जब जब जमाने को जरूरत पड़ी हमें हुस्न का कुरान चाहिए, उसने 17 रबीउल अव्वल को हुस्न का कुरान हमारे दरमियान में भेज दिया। नाम बताने की जरूरत नहीं है। अब जमाने को जरूरत पड़ रही है शुजाअतों का कुरान, उसने फिर 13 रजब को काबे के अंदर शुजाअत का कुरान भेज दिया। अब जमाने ने चाहा कि हुस्न का कुरान भी आ गया, शुजाअत का कुरान भी आ गया, अब जरूरत है वफा के कुरान की, अब जरूरत है सब्र के कुरान की। तो जब हमने मांगा परवरदिगार सब्र का कुरान आए, उसने फिर आगोश अली में हुसैन अलैहिस्सलाम को भेज दिया। फिर जरूरत पड़ी, हमने कहा खुदाया अब हमें चाहिए वफाओं का कुरान, फिर आगोश अली में हजरत अब्बास आ गए। फिर हमने कहा अब चाहिए हमें किस्मतों का कुरान, फिर आगोश अली में ज़ैनब आलिया आ गई। फिर हमने कहा अब हमें चाहिए मोहब्बतों का कुरान, फिर हुसैन की आगोश में सकीना जैसी बेटी आ गई। अल्लाह पढ़े जब जब हमें कुरान की जरूरत जहाँ जहाँ होती रही, इस घराने में कुरान पर कुरान आता रहा। इल्म का कुरान चाहिए, बाकर मौजूद है। इल्म का कुरान चाहिए, जाफर मौजूद है। तकवी का कुरान चाहिए, तकी मौजूद है। फिर हुस्न का तो चाहिए हमें कुरान, तो फिर अस्करी मौजूद है। और बोलता हुआ जमाने का वारिस, फिर बोलता हुआ कुरान चाहिए। तो हमारे पास सबसे बड़ा शुजा वो कि जिससे जमाना आज भी कांप रहा है, जिसे जॉर्ज बुश कहता है सुपरमैन। तवज्जो की एक चेहरे से मैं तलबगार हूँ। कभी जॉर्ज बुश पुकार कर कहता है सुपरमैन, कभी वो डर कर कह देते हैं खामेनेई साहब से इनके पास कुछ हो ना हो। कल जहाँ से बात मैंने छोड़ दी थी वहीं से शुरू है, कुछ हो या ना हो इनके पास अल्लाह की हुज्जत जरूर मौजूद है, इनका वारिस जरूर मौजूद है। मजहब शिया घबराता ही इसलिए नहीं है, कितनी भी परेशानी हो, कितना भी दुश्मन जमाना हो, खौफ किस लिए नहीं हमें मालूम है। शुजाअतों का कुरान हमारे पास, वफा का कुरान हमारे पास, हुस्न का कुरान हमारे पास, इस्मत का कुरान हमारे पास, मोहब्बत का कुरान हमारे पास, इल्म का कुरान हमारे पास, हिल्म का कुरान हमारे पास, तक़वा का कुरान हमारे पास, दलीलों का कुरान हमारे पास। और जितना भी ये सर्किल कुरान मजीद का दायरा शरीयत में मौजूद है, उस सब का वारिस पर्दे क़यामत में आज भी हमारे साथ मौजूद है। जज़ाकल्लाह, सबका वारिस आज भी पर्दे में मौजूद है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मैंने नहीं कहा है, मैंने पहले भी आप ये गुफ्तगू मुझसे सुन चुकी होंगी, लेकिन वैसे सुनिएगा जैसे पहली मर्तबा। 1400 बरस हो गए, आज तक ये जिक्र जो है पुराना नहीं हो सकता। हर साल माह मुहर्रम आता है, हर साल हमें ये जिक्र सुनकर हजारों बार फिर से नया लगता है। ये भी करम मेरे मौला हुसैन का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है दिलों की। जॉर्ज बुश ने कहा था सुपरमैन आएगा, सवाल किया गया था सुपरमैन कौन है? उसने कहा था वही कोई आए या ना आए, सुपरमैन को जरूर रहना है। सुपरमैन का मतलब भी सबको पता है कि सुपरमैन किसे कहते हैं। बच्चों से पूछें वो अपनी डेफिनेशन बताएंगे, जवानों से पूछें उनके जहन में जो होगा, बुजुर्गों से पूछें, लेकिन वो तो फिर भी अक्लमंद था। उसने कहा सुपरमैन आएगा। सबने कहा सुपरमैन कहाँ से आएगा? हो सकता है उसी ने कहा कहीं से भी नहीं आएगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है वहीं से आएगा। सलवात पढ़े सारी दुनिया को मालूम है कि एक न एक आना है। जब नबी ने फरमाया था एक को आना है, तो बेशक मुसलमान भूल गए, लेकिन जिसका इस्लाम से भी ताल्लुक नहीं है वो ईमान रखता है। सुपरमैन आएगा। अब उस सुपरमैन का हम जानते हैं कौन है, इसलिए कि हमें नाम भी पता है, एड्रेस भी पता है, खानदान भी पता है, शजरा भी पता है, हमें सब कुछ मालूम है। वो कहते हैं सुपरमैन आएगा, हम कहते हैं जुल्फ़िकार का वारिस आएगा। वो आएगा कि जिसका हाथ भी अली जैसा, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। वो आएगा कि जिसका मंसूबा भी अली जैसा, बेशक बेशक। वो आएगा कि जिसका चेहरा भी अली जैसा, वो आएगा कि जिसका दिल भी अली जैसा। बेशक। नारे हैदरी, नारे
शुजाअत होगा कुरान पढ़ते गैबत से आएगा। जॉर्ज बुश ने कहा था बरसों बरस पहले सुपरमैन अब आएगा कहाँ से? हर एक दिल को इंतजार है मेरे मौला के आने का। बेशक 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 कोई ऐसा दिल नहीं है, और अब तो बहुत ज्यादा वक्त हो चुकी है कि मौला की आंखें तब तक बंद ना हो जब तक हम आपकी ज़ियारत न इलाही करें। इलाही आमीन। कहाँ से आएगा? अब सब कहेंगे कहीं से भी नहीं, पहले तो हम ही कहेंगे। मोहब्बत करने वाले चेहरे मेरे सामने मौजूद हैं, न जाने कौन कौन सुन रहा होगा, मुझे नहीं मालूम कहाँ कहाँ। हर एक के दिल में ख्वाहिश है कि मौला कहीं से ना आए, हमारे यहाँ से। तो जॉर्ज बुश ने भी सोचा होगा कहीं से नहीं आएंगे, हमारे यहाँ से। तो फिर लंदन से आवाज आई होगी नहीं नहीं वो कहीं से नहीं आएंगे, हमारे यहाँ से। पाकिस्तान वालों ने कहा होगा खामोश, शहादत पर शहादत हम दे रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कौन समझा है नहीं। जब चारों तरफ से आवाज आएगी, कोई लंदन से कहेगा हमारे यहाँ से, फिर ईरान से आवाज आएगी हमने इनका दरिया बहाया हुआ है, हमारे यहाँ से आएगा। पाकिस्तान की आवाज आएगी खामोश, शहादत पर शहादत हम दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं लंदन से आए, आप कह रहे हैं अमेरिका से आए, आप कह रहे हैं ईरान से आए, तो फिर हिंदुस्तान वाले क्यों पीछे रहे? या मैं यूँ कह दूं मेरी बस्ती नौगावा सादात वाले क्यों पीछे रहे? हम कहेंगे बड़ी मशहूर बस्ती है हमारी, मौला कहीं से नहीं आएंगे, हमारे यहाँ से आएंगे। तो जब हर तरफ से आवाज बुलंद होगी कि मौला हमारे यहाँ से आएंगे, मौला हमारे यहाँ से आएंगे, तब आवाज़ खुदरत आएगी खामोश। न वो अमेरिका से आएंगे, न वो लंदन से आएंगे, न वो पाकिस्तान से आएंगे, न वो ईरान से आएंगे, वो कहीं से नहीं आएंगे। तो हमने कहा खुदा फिर वो आएंगे कहाँ से? कहा ये कोई आम हस्ती नहीं है, वारिस जुल्फ़िकार है, वारिस कलाम है, अली का बेटा है, वो बहू पैकर अली है, जहाँ से पहलाया था वहीं से आखिरी है। उजाले की कमालात देखकर इज्जत भी खुदा देता है, औकात देखकर जल्दी ना है तो वैसों से उठती ना जुल्फ़िकार। अल्लाह ने फेंक दी थी मगर हाथ देखकर नारे हैदरी, नारे सलावत। तो जहाँ से पहला आया था बस वहीं से आखिरी आएगा। सुभान अल्लाह। वारिस जुल्फ़िकार अज़हर हसन ज़ैदी बहुत मशहूर और मारूफ नाम है ज़ाकरी की दुनिया में, पूरी दुनिया में इनका नाम बड़ा मशहूर है। उनसे किसी क्रिश्चियन ने सवाल किया था और एक बात उनसे के सामने रखी थी और कहा था, जितनी मेरी बहनें बैठी हुई है खास तौर से मैं अपनी छोटी बहनों की तवज्जो की तरफदार हूँ, मुझे कहा था कि किसी क्रिश्चियन ने कहने लगे अल्लामा साहब आपके हादी में और हमारे हादी में एक चीज कॉमन है। उन्होंने कहा क्या? हमारे ईसा भी आसमानों पर है और आपका वारिस भी, आपका हादी भी मौजूद है पर्दे गैबत में। तो अज़हर हसन ज़ैदी साहब ने कहा था बेशक इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने फिर मुस्कुरा कर कहा लेकिन एक बात का फर्क है, हमारा वाला वहाँ है, आपका वाला यहाँ है। बेशक बेशक। जो समझ गया उसे मिंबर से मेरा सलाम है, जो खड़े हैं बैठे हैं हर एक से मैं मुखातिब हूँ। तो उन्होंने कहा था आपके वाले में और हमारे वाले में इतना फर्क है, आपका वाला यहाँ है, हमारा वाला वहाँ है। फिर अज़हर हसन ज़ैदी साहब ने कहा बेशक इसमें भी कोई शक नहीं। तो कहने लगे हम मानते हैं हमारा वाला वहाँ, आपका वाला यहाँ। तो अज़हर हसन ज़ैदी साहब ने कहा इसमें कोई बेशक शक ही नहीं है, इसलिए कि जब अल्लाह ने हमारे वाले की और आपके वाले की फजीलत को तराजू में तोला तो हमारे वाले की फजीलत इतनी वजनी थी, हमारे हादी की फजीलत इतनी वजनी थी, हमारा वाला तो यहाँ रह गया, आपका वाला वहाँ पहुँच गया। सलामत रहे। तो यही वजह है कि अगर पूरी दुनिया में बाप मशहूर हो जाए तो बेटों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम मैं मिसाल के तौर पर किसी का भी नाम ले सकती हूँ, वैसे हमारे यहाँ तो सभी मशहूर हैं, कोई ऐसा है ही नहीं जो मशहूर ना हो। अब मिसाल के तौर पर
किसी का भी नाम ले लीजिए अपनी बस्ती में, जावेद आबदी साहब हैं, नदीम जैदी साहब हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है हमारे यहाँ पर। या फिर मैं यूँ कह दूँ कि मुझे भी सब जानते हैं। तो आने वाले वक्त में जरूरी नहीं है कि जितना बाप मशहूर हो जाए उतना बेटा भी मशहूर हो जाए, ये जरूरी नहीं है। बेटे को बाप की बराबर मशहूर होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है वो उतने ही मशहूर हो जाएगी जितना बेटा। हर एक दिल में बात पहुंच गई होगी, मोहब्बत दिल ने बता दिया होगा कि मारिफत की मंजिल कहाँ तक पहुंचेगी, न जब तक बेशक हमें जाना है। और मेरे ख्याल में बंद दरवाजे भी खुल गए हैं, बंद दरवाजे भी खुल गए हैं। जालिम ने सोचा ही नहीं था कि शाम में हुकूमत यजीद की थी, जब भी अज़ादारी न रोक सका, एक तन्हा बहन ने उसी के घर में बैठकर वहीं पर अज़ादारी की बुनियाद रखी थी। तो जब इतना बड़ा यजीद न रोक सका तो आज का यजीद क्या रोकता? सलवात पढ़े मर मोहम्मद। आज का यजीद नहीं रोक सकता था। बाप मशहूर है तो जरूरी नहीं बेटा भी उतना मशहूर हो जाए। मिसाल के तौर पर हम कोई भी बड़ी हस्ती का नाम ले लेते हैं, एक बहुत मशहूर और मारूफ नाम है अल्लामा इकबाल साहब का, और सब कहते हैं जी इतने मशहूर नाम कि पूरी दुनिया में उनका नाम फैला हुआ है। उनके बेटे का नाम ज्यादातर दुनिया नहीं जानती, जावेद इकबाल। और थोड़ा सा मैं तवज्जो चाहूंगी सबकी, जावेद इकबाल। एक रोज उनका टीवी पर इंटरव्यू था, बड़े अफसोस में कह रहे थे कि मैंने सारी जिंदगी अपनी जिंदगी नहीं जी, लेकिन मुझे मौजू से नहीं हटना, मौजू वही पर रहेगा। उन्होंने कहा सारी जिंदगी मैंने अपनी जिंदगी नहीं जी। तो जो एंकर था उसने पूछा क्यों? कहने लगे अब्बा बड़े मशहूर थे, हमारे अब्बा जो थे वो इतने ज्यादा मशहूर थे कि हमें कभी भी किसी ने जावेद इकबाल कहकर नहीं पुकारा, हमेशा अल्लामा इकबाल का बेटा कहकर पुकारा। तवज्जो चाहिए मुझे, तवज्जो। हर एक ने जब भी पुकारा अल्लामा इकबाल का बेटा कहकर पुकारा। जावेद इकबाल कभी किसी ने नहीं कहा। स्कूल में थे तो टीचर कहते थे कहाँ है जावेद इकबाल का बेटा, और जब पढ़ लिख कर चीफ जस्टिस बन गए, अदालत में बैठा था, हुआ था मैं एक रोज, उस दिन बिल्कुल मुझे यकीन हो गया मैंने सारी जिंदगी अपनी जिंदगी नहीं जी अब्बा के मशहूर होने की वजह से। क्यों? एक मुलजिम आया, वो अपने वकील को कौन ही मार रहा था, कह रहा था यही अल्लामा इकबाल का बेटा। देखिए पहले ही आप पहुंच गए, तो उसने कहा यही है अल्लामा इकबाल का बेटा। तो उस दिन मुझे बिल्कुल यकीन हो गया अब्बा मशहूर हो तो फिर बच्चे अपनी जिंदगी नहीं जीते, इसलिए कि अब्बा उनकी पहचान बन जाते हैं। तो देखिए दुनिया का ये सिस्टम है, क्या कहने अली के उस बेटे के, अब मैं चेहरे देखूंगी सबके, क्या कहने अली के उस बेटे के कि जिस घराने में मोहम्मद जैसा हुस्न होते हुए उसका हुस्न भी अपना, अली जैसी शुजाअत होते हुए उसकी शुजाअत भी अपनी, सज्जाद जैसे सज्जे होते हुए उसका सज्जा भी अपना, हुसैन जैसा सब्र होते हुए उसका सब्र भी अपना, बाकिर जैसा इल्म होते हुए उसका इल्म भी अपना, जाफर जैसा इल्म होते हुए उसका इल्म भी अपना, हसन जैसी दलीलें होते हुए उसकी दलीलें भी अपनी, तकी जैसा तकवा होते हुए उसका तकवा भी अपना, अस्करी जैसी हैबत होते हुए उसकी हैबत भी अपनी, अल्लाह के जैसी हैबत होते हुए उसकी हैबत भी अपनी। क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, सजदे में जाके सर को कटाया हुसैन ने, सजदे में जाके सर को कटाया हुसैन ने, नेज़े पे सर था और जुबां पे आया थे, कुरान इस तरह से सुनाया हुसैन ने। नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे सलात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा दुनिया परेशान है आज, बेशक मौला आएंगे लेकिन आएंगे कैसे? अब सोचिए, कुरान गवाही दे रहा है, कैसे आएंगे? बिल्कुल वैसे जैसे मूसा आए थे। हर एक चेहरा पढ़ा लिखा मेरे सामने मौजूद, अल्लाह का शुक्र है। कैसे आएंगे? मौला बिल्कुल वैसे जैसे मूसा आए थे,
मूसा कैसे आए थे बताना मेरा मकसद नहीं है, सबको मालूम है। एक जुमला सुन लीजिए। ऐलान हुआ किसके सामने? उसके फिरौन। अब नाम तो मुझे बताना नहीं था लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। फिरौन के सामने नजूमियों ने कहा फिरौन एक आएगा जो तेरे तख्त को उलट देगा, हुकूमत को हिला देगा। वो फिरौन था, मान गया। क्या कहा बुजुर्ग समझ गए। फिरौन था, मान गया। उसने फौरन क्या किया? चलती फिरती दाइयां छोड़ दी, लेडीज हेल्थ विजिटर्स विजिट के लिए, और कहा जाओ घर घर देखो, जहां माँ उम्मीद से हो रजिस्टर लो, नाम एड्रेस नोट कर ले आओ। बेटा हो कत्ल कर देना, बेटी हो छोड़ देना। यहाँ उल्टा सिस्टम था। मैंने क्या कहा है समझ गए? बेटी हो छोड़ देना, बेटा हो कत्ल कर देना। तो घर घर लेडीज हेल्थ विजिटर्स गई, उन्होंने जाकर नोट कर लिया, बेटा हुआ कत्ल कर दिया, बेटी हुई छोड़ दी। तो हम कहेंगे ये फिरौन क्यों 70,000 बच्चों को कत्ल करवा रहा है? जिसको आना है वो तो आकर रहेगा। वादा कुदरत का है, ऐलान कुरान का है, जिसको आना है वो तो आकर रहेगा। क्यों 70,000 बच्चे कत्ल करवा रहा है? तो हम कहेंगे कितना भी बम धमाके करते रहो, कितनी भी गोलियां बरसाते रहो, कितना भी अज़ादारी को रोकने की कोशिश करते रहो, बारिश से अज़ादारी को आना है, आकर रहेगा। मूसा आए भी और उनको दिखाई भी नहीं दिए, नजर भी नहीं आए। फिर क्या हुआ? माँ ने संदूक में रखा, वाकया सबका सुना हुआ है, बस गुजर कर जाना है। माँ ने संदूक में रखा। पानी की सिफत होती है, जब पानी में दरिया में संदूक को रखा तो पानी की सिफत है। हमारे पीछे भी कभी न कभी पानी बहता था, अभी भी है यहाँ। पानी अपनी चीज को अपने साथ बहा कर लेकर जाता है, ऐसे ही है ना? कुछ भी पानी में आप डालें अपनी मौजू के साथ बहा कर ले जाता है। लेकिन क्या अजब करामात थी कुदरत की। इधर बीबी ने संदूक रखा, पानी बह रहा था ऐसे, संदूक चल रहा था ऐसे। लेकिन बारिश को पहुंचना था। जनाबे मूसा मंजिल पर पहुंचे, लानती ने गोद में उठाया। देखिए अकीदे से लानती होता है इंसान, नियत से लानती होता है, अमल से लानती होता है। थी तो फिरौन की बीवी, लेकिन अकीदा सही था, मोहब्बत अल्लाह से थी, उसी के घर में थी। जनाब आसिया ने देखा संदूक खुला, आगोश में लिया, मूसा मुतमईन हो गए। पूरी तकरीर का सबसे वजनी जुमला, आगोश में लिया, मूसा मुतमईन हो गए। फिरौन ने चाहा मैं भी गोद में ले लूं, तो जैसे ही फिरौन ने आगोश में लेना चाहा, कहती है कि वहाँ मेरे बात के कि हर एक को पता चल गया कि कोई भी मासूम किसी काफिर की आगोश में परवरिश नहीं पाता। इधर मुंह पर तमाचा पड़ा, उधर फौरन जनाब आसिया से कहने लगा, आसिया कहीं ये बोली तो नहीं? अब मुझे नहीं पता किसने सुना किसने नहीं सुना। जैसे ही तमाचा चेहरे पर लगा, कहा आसिया कहीं ये वही तो नहीं है? तो कहा फिरौन तेरी मत मारी गई है, वो आएगा बनी इसराइल से, ये आया है दरिया नील से। तो कहा नहीं आसिया, तमाचा मैंने खाया है, ये आम तमाचा नहीं है, ये बहुत खास तमाचा है, लेकिन जिसको पढ़ती है उसे पता चलता है। तो कहने लगा चेक किया जाएगा, चेक करो, आग रोशन करो, फूल रख दो, अगर बच्चा होगा तो आग की तरफ जाएगा, और कुछ खास होगा तो फिर फूल की तरफ जाएगा। तो हम कहेंगे फिरौन, चेहरे बताएंगे, अब चेहरे एक एक चेहरा मुझे, हम सब कहेंगे फिरौन क्यों चेक कर रहा है? 40 साल का हो लेने दे, 40 साल का हो लेने दे, पता चल जाएगा नबी है कि नहीं है। जवाब आएगा तंजीम खामोश, काफिर जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ, काफिर जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। मुझे मालूम है एक दिन का हो तो भी मासूम होता है, 40 बरस का हो तो भी मासूम होता है।
حسین شاہ حیدرآباد ہے. تو بے شک 40 سال کا ہو تو بھی معصوم ہے, 1 دن کا ہو تو بھی معصوم ہوتا ہے. سارا سسٹم آج کا بتا رہا ہے کہ عزاداری نہیں روک سکتی. جس کا وارث فرزند غیبت میں موجود ہو, اور یہ جو نظام خراب ہو رہا ہے نا اس کے لیے بس. لیکن مجھے آواز ویسی چاہیے کہ جتنی محنت میں نے کی ہے بارگاہ شہزادی کونین میں ہم سب کی طرف سے قبول ہو. یہ چاروں طرف جو یزید کی آوازیں بلند ہیں, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, تو پردہ غیبت میں جو میرے مولا ہیں بس آنے کا وقت بھی انشاءاللہ جلد نزدیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نظام منتشر بس مہدی دوران سنبھالے گا, ہر ایک چہرے سے مخاطب ہیں. نظام منتشر بس مہدی دوران سنبھالے گا. جو ہے خستاختہ ملا کسر ان کی نکالے گا, جو ہے خستاختہ ملا کسر ان کی نکالے گا. نہ بن کر اژدہا کر کوشش حق کو نگلنے کی, وہ بیٹا ہے علی کا دیکھ اللہ چیر ڈالے گا. جزاک اللہ. دیر تو نہیں ہو رہی ہے, تھک تو نہیں رہے ہیں. میرے خیال میں پرمیشن کی بات بھی آ گئی ہے, تو ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ایک اور بڑا سوال پڑھیں. یہ ساری علامات میرے مولا چاہنے کی تقریباً پوری ہوتی جا رہی ہیں. میرے مولا نے خود نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا کہ جب ہمارا صاحب آئے گا, کس انداز میں فرما رہے مولا, جب ہمارا صاحب آئے گا اس وقت ہوائیں صاف ہو جائیں گی. سبحان اللہ. دنیا میں ٹریفک جام ہوا, ہوائیں صاف ہو گئی. کیا کیا علامات, دلوں میں جو ہے بغض بڑھ جائے گا, ماشاءاللہ بڑھ کے. ایک دوسرے کو کافر کہا جائے گا, لعنتی کہا جائے گا, وہ سب بھی ہونے لگا. اور دوسری چیز کیا, میرے گھر اچھی مجلس ہوئی, ہمارے تو زیادہ پبلک آئی, عزادار بہت زیادہ ہے, ہم نے تو ناریل باٹا, ہماری بڑی مجلس. اکثر یہ مینٹلٹی ہو چکی ہے, ابھی آوازیں نہیں آ رہی ہیں. پتہ نہیں کون کس کس کو سمجھ رہا ہوگا, میں نے کسی کے لیے نہیں کہا. بانی مجلس میں خود بھی ہوں. تو مولا نے دکھاوا کبھی جو ہے مولا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. نیت دل قبول ہے, معرفت اور محبت قبول ہے. ہم کہتے ہیں ہماری مجلس زیادہ اچھی ہوگی اس لیے کہ بھیڑ زیادہ جمع ہو گئی, ہم نے تبرک بہت اچھا بانٹا, اور جہاں پر ایک عام سے تبرک بٹا. تو آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ کس کی مجلس ان کو پسند آئی, کس کی نہیں پسند آئی. کیا معلوم مولا نے کس کی قبول کی ہے مجلس, کس کی نہیں کی ہے. اور ایک دوسری چیز اور, اس کورونا نے آ کر بڑا اچھا کام کر دیا. اب آپ کہیں گے کورونا جیسی بیماری نے اچھا کام, وہ جو مجلس کو فیشن بنایا گیا تھا نا, کالے کپڑے ہوں لیکن سب سے الگ ہوں, کٹے ہوئے بھی ہوں, پھٹے ہوئے بھی ہوں, چمکدار بھی ہوں, خوبصورت بھی ہوں. کالا لباس کس لیے رکھا گیا تھا, غم ظاہر کرنے کے لیے. کیونکہ کالا رنگ غم کی علامت ہے. اس کالے رنگ کو اس طرح سے تبدیل کر دیا گیا کہ ایک اچھے سے اچھا ڈیزائنر کپڑا پیچھے ہو گیا اور وہ کالا آگے ہو گیا. آپ کوئی مجھے ایمان سے بتائے, ہمارے یہاں خدا نہ کرے جب کسی کی موت ہوتی ہے ہمیں ہوش ہوتا ہے؟ نہ ہمیں رونے کا پتہ ہوتا ہے, نہ ہمیں کپڑوں کا پتہ ہوتا ہے. کبھی سج سنور کر چہرے پر آدھا کلو فاؤنڈیشن لگا کر خوشبو سے تر ہو کر آتے وقت کبھی یہ سوچا کہ کوئی پردے میں موجود ہے جو ہمیں دیکھ رہا. اگر یہ سوچ دل میں آ جائے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے, تلوار پڑھیں پر آخری میرے جملے ہیں. یہ سوچ کر عزاداری کے لیے گھر سے قدم بڑھایا جائے. مذہبی شیعہ کا ہمارا طریقہ کیا ہو, جب ہم گھر سے قدم باہر نکالیں
عزاداری مجلس میں جانے کے لیے ہمارا سر جھکا ہو، اور جب ہم فرش عزا سے گھر واپس جائیں ہمارا سر بلند ہو کے ساتھ، اس لیے کہ حسین کی عزاداری کر کے جا رہے ہیں۔ ایک ایک عمل میرے مولا دیکھ رہے ہیں پردہ غیبت سے۔ خوف زدہ کیوں نہیں تھے، دلوں کو اطمینان کیوں تھا؟ میری کتنی مائیں بہنوں نے مجھ سے کہا ان 2 روز میں کہ دیکھنا تنظیم پرمیشن ضرور ملے گی، میرا دل بھی کہہ رہا تھا پر چاہے کم ہی صحیح عزاداری تو ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اب میں آخری میرا جملہ ہے پھر مسائل کی منزل ہے، کیوں کہ لی ہے تیغ شیخ الاخیر کا وارث۔ ابھی بھابھی بھی کھڑی ہوئی ہے اور ایک چہرہ کھڑا ہوا ہے، میری طرف دیکھے گا۔ یہ لی ہے تیغ شیخ الاخیر کا وارث، نبی کا لال جناب امیر کا وارث۔ ارے چہرے کی طرف جو چاہیے، نبی کا لال جناب امیر کا وارث نکل کے آئے گا جس دن غدیر کا وارث، نکل کر آئے گا جس دن غدیر کا وارث، زبان تیغ بتائے گی اس کو شان غدیر، کہیں پناہ نہ پائیں گے دشمنان غدیر۔ زبان تیغ بتائے گی اس کو شان غدیر، کیوں 70,000 وہ ہوں گے جو مولا کے باقی ہیں، میری شہزادی ہوں گی، اور اس وقت جب شہزادی کونین ہوں گی، حساب کتاب کا وقت ہوگا، میری بیوی آئیں گی اور بیٹے سے فرمائیں گی بیٹا اس کی گردن اڑاؤ، اس نے یتیموں کا مال کھایا، اس کی بھی گردن اڑاؤ، اس نے بیواں کا مال کھایا، اس کی بھی گردن اڑاؤ، اس نے مال امام کھایا۔ کیوں کہ ہم نے کھاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ مسجد کا ہے تو بھی کھا لیا جائے، امام بارگاہ کا ہے تو بھی کھا لیا جائے، یتیموں کا ہے تو بھی کھا لیا جائے، مسکینوں کا ہے تو بھی کھا لیا جائے، تیرا ہے تو بھی کھا لیا جائے، سب کا کھا لیجیے۔ کھاتے وقت نہیں دیکھا، اسی لیے میری شہزادی آئیں گی اور ایک ایک کی گردن میرے مولا اڑائیں گے، جتنے بھی باقی ہے میرے مولا کے۔ اس زبان تیغ بتائے گی اس شان غدیر، کہیں پناہ نہ پائیں گے دشمنان غدیر۔ اب میری طرف دیکھیے، وہاں جو ہو رہا ہے ہونے دے۔ اس زبان تیغ بتائے گی اس جو شان غدیر، کہیں پناہ نہ پائیں گے۔ میں یہی کہتی رہوں گی تو توجہ نہیں ہوگی۔ ایک اور سلوات کریں۔ میں تیزی سے گزروں گی کہ لی ہے تیغ شیخ الاخیر کا وارث۔ گرمی کا مجھے بھی احساس ہے، اب آخری لمحات ہیں، میری طرف دیکھیے گا۔ لی ہے تیغ شیخ الاخیر کا وارث، نبی کا لال جناب امیر کا وارث نکل کے آئے گا جس دن غدیر کا وارث۔ زبان تیغ بتائے گی اس شان غدیر، کہیں پناہ نہ پائیں گے دشمنان غدیر۔ صدا کسی کی یہ ہوگی دیار سے بھاگو۔ سمجھ گئے سب سمجھ گئے۔ صدا کسی کی یہ ہوگی دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو۔ آئیں گے نیچے سے آواز میرے ساتھ ساتھ، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو۔ اور قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ سلامت رہے، پھر آ گیا در خیبر کو کھاڑنے والا۔ بے شک در خیبر کو کھاڑنے والا وارث پھر آئے، پھر کربلا کا وارث آئے، پھر حسین کی مظلومی کا بدلہ لینے والا، پھر حسین کی غربت کا بدلہ لینے والا۔
लुटी हुई चादरों का बदला ले। मैं अपने मौला की जुबानी एक जुमला कहकर मसाइब का आगाज कर दूं। रो रो कर मेरे मौला फरमाते हैं, मैं भूला नहीं शाम का बाजार, मैं भूला नहीं शिमर के तमाचे। कल मैंने शहजादी फातिमा सुगरा और बाबा की रुखसत का मंजर पेश किया। कोई ऐसी बहन नहीं यहाँ पर जिसका भाई ना हो। खुदा हर एक बहन के भाई को सलामत रखे। कोई ऐसी माँ नहीं यहाँ जिसके बाल बेटा ना हो। खुदा हर एक माँ के बेटे को सलामत रखे। कोई ऐसी बच्ची यहाँ नहीं जिसके सर पर बाप न हो, और जिसके नहीं है इस काम को बस वही जान सके। बस मुझे आज वो गुर्बत बयान करनी है। कई विदाइयों में मैं मौला की मदीने से कोशिश करूंगी एक एक जुमला ये दरबार वली से वापस आए ना। आदम बहन ज़ैनब से फरमाने लगे, ज़ैनब अब मदीना रहने काबिल नहीं था। मैंने कल बयान किया था कि सरदार मुल्क से दूर है हुसैन, उससे आगे की मंजिल सुनिए इमाम के गुरबत। कुछ आंखें इस अंदाज में तड़प रही हैं कि मुझे देख कर खौफ आ रहा है कि हो सकता है कोई मेरे जुमले को बर्दाश्त न कर सके। 3 मुहर्रम हो गई, 7 रोज और बचे। जो जिंदा होगा और तक की जगह पहले जुमला सुनिए। सबसे पहले तमाम बनी हाशिम के जवान तैयार हुए, रुखसत हो गई सुगरा से। आकर अलमदार से कहती है, मौला अब्बास सबसे पहले भाई मैं नाना की मजार पर जाऊंगा। नाना के मजार पर हुसैन आए। आने के बाद जैसे बच्चा माँ से लिपट कर रोता है, वैसे कब्र रसूल से लिपट कर हुसैन रो रो कर कहते हैं, नाना नाना अब हुसैन कभी वापस मदीना न आए। नाना मैं अपना वतन छोड़ कर जा रहा हूँ। नाना कोई आए या ना आए, हुसैन अब कभी वापस नहीं आए। इतना वक्त नहीं है मैं तमाम मसाइब बयान करूं। मुझे नहीं मालूम कैसे नबी ने नमाज़े को रुखसत किया। उसके बाद क़यामत हो गई जब अम्मा की खबर पर हुसैन आए। यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अरसे से माँ से जुदा हो गया हो और एक अरसे के बाद उसके सामने माँ आ गई हो। माँ की खबर को होश में भरकर तड़प तड़प कर हुसैन कह रहे थे, अम्मा अम्मा अली अकबर को ले जा रहा हूँ। अम्मा 32 बरस का अम्मा सैयद सज्जाद को लिए जाता हूँ। अम्मा 6 माह वाला अली असगर साथ लेकर जा रहा हूँ। अजरक भरा मौला कोई हमला दे सिवाय खबे मजलूम करबला उधर हजरत को आबाद रखे। अम्मा 6 माह वाला अली असगर लेकर जा रहा हूँ। अम्मा सीने पर सोने वाली सकीना को लेकर खड़ा है। एक मरतबा इमाम शहजादी की कब्र के नजदीक बैठे, माँ के कदमों के जानिब पेशानी रखी और लोग कहने लगे, अम्मा जाने वाली बहन को साथ ले जा रहा हूँ। अम्मा ज़ैनब को भी साथ ले जा रहा हूँ। अम्मा कुलसूम को भी साथ ले जा रहा हूँ। एक बार जब मेरी शहजादी कब्र से बाहर आई, बेटे को सीने से लगाया, आवाज दी, हुसैन आप मदीना छोड़ रहे हो, माँ खबरें छोड़ रही है। अरे हुसैन यही हक पर रोने का, जितना हो सके उतनी बुलंद आवाज में रोए। मैंने पहले ही कहा है, शहजादी अगले बरस वो रोएगा जो जिंदा होगा। न जाने कितने दरमियान से हमारे चले गए जो पिछले बरस थे। इस बरस नहीं
आती है, खबरदार मलिका हयाती है, खबरदार वो आती है कि जो सही से चलना भी नहीं चाहती, खबरदार वो आती है कि जिसका सर कभी आसमान के सूरज ने नहीं देखा। एक मर्तबा हाथी की आवाज बुलंद हुई, अलहिजा। आए मेरे मौला, नहीं हो रही मुझे बर्दाश्त। एक मर्तबा गाजी अलमदार की आवाज बुलंद हुई, अलहिजा अलहिजा। इधर शहजादी ज़ैनब बाहर की तरफ चली, जो आँख तक नहीं हो सके तेरी तरफ। एक मर्तबा शहजादी कदम उठाती हुई आहिस्ता आहिस्ता, और ऐसे नहीं आ रही, कदम के साथ अब्बास का सर झुका हुआ है। हुसैन सामने खड़े हैं, बनी हाशिम के जवान सरों को झुकाए हुए खड़े हैं। ज़ैनब आलिया ने जैसे ही कदम बाहर निकाला, एक मर्तबा फिर पीछे हट गई। अलमदार ने झुककर कहा, बीबी मैं आपको सवार कराने के लिए आया हूँ। कहती नहीं भैया, मैं आपसे सवार आज नहीं होना चाहती। मातम करना जिसके समझ में आ रहा है, रोना भी नहीं आना तो बस हाय कह देना, बस सीने पर मातम करके हाथ मार देना है। नहीं भैया अब्बास, मैं आज आपसे सवार नहीं होना चाहती। इमाम ने शहजादे अली अकबर से कहा, जाओ फूफी को सवार कराओ। शहजादे अली अकबर आगे बढ़े, फूफी को सवार कराना चाहा। बीबी फरमाती है, अकबर नहीं, मैं आज आपसे भी सवार नहीं होना चाहती। अकबर पीछे हटे, कहा जाओ कासिम फूफी को सवार कराओ। कासिम से भी कहती नहीं बेटा, मैं आज आपसे भी सवार नहीं होना चाहती। जब बीबी ने इनकार किया, एक मर्तबा गरीब ज़हरा आगे बढ़े। मैं कैसे कहूँ जुमला, मैं कैसे कहूँ ये जुमला। एक मर्तबा गरीब ज़हरा आगे बढ़े, इमाम ने सर झुकाकर कहा, बहन ये भाई अब गरीब हो गया। ज़ैनब ये भाई अब गरीब हो गया, अब गरीब वतन हो रहा हूँ। अगर आपकी इजाजत है तो ये गरीब भाई खुद सवार करा दे। कहती है नहीं भैया, मैं आपसे भी सवार नहीं होना चाहती। हमने कहा, बहन ज़ैनब आप फिर किससे सवार होना चाहती हैं? सुनेगी जितने भाइयों वाली बहनें हैं, जितनी माँ मौजूद है, हर एक माँ के लिए जुमला है, हर एक तड़पते हुए दिल के लिए जुमला है। रो के कहती है, भैया बस आज मुझे वो सवार कराए जो 11 मुहर्रम को बंधे हुए हाथों से गले में काम पहनकर ज़मीनी पेशानी के साथ जो मुझे सवार कराए। इधर हुसैन ने सुना, आवाज़ दी, बेटा सज्जाद आगे बढ़ो, तुम्हारा बाबा गरीब हो गया। आज मुझे यकीन हो गया, मैं उजड़ गया, मैं बर्बाद हो गया। परवरदिगार हमारे इस कुर्से को, इस मजलिस को, इस पर्शियों को बारगाह शहजादी कौनैन में शरफ़ कबूलियत मौला, हमें कभी कोई गम न देना सिवाय मज़लूम करबला के। परवरदिगार उस करीब जवान बेटे का वास्ता 18 बरस की उम्र में जिसके सीने पर नेज़ा देखकर इमाम ने कहा था, अकबर बड़ा जालिम था, पर मर्द से लूट लिया। खुदारा हर एक बहन का भाई सलामत रहे, हर एक माँ का कड़ियल जवान सलामत रहे। ए मौला वास्ता उस बीमार इमाम का जो कांटों पर पैदल चल, खुदारा बात तो मेरे इमाम की मजलूमी का, बहते हुए पैरों के छालों से खून का, जितने भी बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। मेरे मौला जहाँ कहीं अस्पतालों में या घरों में मौजूद बीमार है, इस वबा को, इस बीमारी को, इस वायरस को दूर फरमा, हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।